Hello students, chapter number 11, perimeter and area. Here we will learn only the basic equations to find perimeter as well as area of square and rectangle. So perimeter of square is length plus length plus length plus length. Actually perimeter means what? Sum of all four sides, right? So it will become 4L and the unit of perimeter will be either meter or centimeter because length is measured in meter centimeter. It can be kilometer also if the distance is too much big. Okay. Now let us see the question based on this formula. Find the perimeter of a square garden whose length is 25. Let me write the data first. Square garden is given, length is 25 meter and perimeter we have to find. So perimeter equal to question mark. Now perimeter of square I had written shortly but you will write fully. Perimeter of square equals to 4 into L. This formula, substitute the value of L 25 because length is 25, 4 into 25 100 meter. Unit, don't forget to write unit 100 meter. Okay, so we got the perimeter of square garden 100 meter. Next question, if the length of a square garden is 12 meter, find the cost of fencing and to fence 1 meter required cost is 20 rupees. We have to find the cost of fencing. Okay, let me write the data. There is a square garden, length is 12 meter and the cost of fencing we have to find, and what is given? For 1 meter the cost is 20 rupees. So this much is given to us. Now let me solve. See here it is a garden. Perimeter of square garden equals to 4L, 4 into 12 because length is given 12. So 4 into 12, 48 meter will be the perimeter. Now we will find the cost. So to fence 1 meter we have to give 20 rupees. So to fence 48 meter, how many rupees will give? Now cross multiply. 48 will multiply with 20 and this one will go in denominator. Okay, 1 will come in denominator. So 48 will multiply with 20, so we'll get 960 rupees. So what is the total cost of fencing? 960 rupees. So this kind of sums can be asked in your examination which are based on perimeter of square. Now we will go to the next topic, area of square. Area of square, the formula is length into length and unit is meter square or centimeter square or kilometer square. Now let me solve two sums on this. What is the question? Find the area of a square room having length 36 मीटर. एक रूम है जिसकी लेंथ दी हुई है 36 मीटर, हमें उसका एरिया निकालना है. डेटा लिख लो. स्क्वायर रूम इज गिवन, लेंथ इज 36 मीटर, एरिया वी हैव टू फाइंड. सो क्वेश्चन मार्क, राइट द फॉर्मूला. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू L इंटू L. L की वैल्यू यहाँ पर पुट करो. 36 इंटू 36 हो जाएगा 1296 एंड डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट मीटर स्क्वायर. अगर लेंथ मीटर में है तो यहाँ मीटर का स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर रूम इज 40 मीटर. क्या करना है? द कोस्ट टू फिक्स द टाइल्स, इफ द कोस्ट टू फिक्स टाइल्स इन 1 मीटर स्क्वायर इज 25 रुपीज. हमें फाइंड करनी है कॉस्ट टाइल्स को फिक्सिंग करने की, और कॉस्ट इस तरह से दी है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में टाइल्स अगर आपको फिट करनी हो तो 25 रुपीज लगते हैं. इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है. तो सबसे पहले डेटा लिख लो. स्क्वायर रूम पेरीमीटर दे रखा है 40, कॉस्ट हमें निकालनी है, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या दी है? 25 रुपीज़. ओके, इतनी 4 चीज़ें हमें दी हुई है. चलो पहले तो हम लेंथ फाइंड करेंगे क्योंकि लेंथ ही नहीं है हमारे पास. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4L. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 4L. अब क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है तो उसकी जगह पर हम 40 लिखेंगे, 4 एज इट इज़ और लेंथ भी एज इट इज़, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है. तो ये 4 अगर इक्वल टू के लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन में होगा. तो 40 विल बी डिवाइडेड बाय 4. You will cancel 40 by 4, you will get 10.
4 10 जा 40, सो लेंथ विल बी 10 मीटर। अब हमें लेंथ मिल गई। अब क्या करेंगे, हमें टाइल्स फिक्स करनी है, तो टाइल्स को फिक्स करना होगा तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेंथ फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे उस रूम का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, 10 इंटू 10 विल बी 100 मीटर स्क्वायर। देखो पेरीमीटर का यूनिट मीटर में है, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमें एरिया मिल गया। अब कॉस्ट क्या है, देखो 1 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगानी है तो 25 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो हमें तो इतने मीटर स्क्वायर में लगानी है, तो कितने देने पड़ेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 25 रुपीज़, तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 को 25 से, तो आंसर आ जाएगा 2500। तो इतने रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर का हमने देख लिया, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखो, तो रेक्टेंगल में ना दोनों साइड अलग अलग होंगी, एक लंबी होगी और एक छोटी। लंबी वाली को हम लेंथ बोलेंगे, छोटी वाली को ब्रेथ। तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, क्योंकि 4 साइड होंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया फॉर्मूला पेरीमीटर का, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी, राइट। अब यही फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एक्सरसाइज के ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैंने ऑनलाइन क्लास में करवा दिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस मैं अभी इस वीडियो में कर रही हूँ। मैंने 7th क्वेश्चन पहले लिया है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। तो क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर है 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेथ दे रखी है 30, हमें लेंथ भी फाइंड करनी है और एरिया भी। पेरीमीटर दिया हुआ है, तो इसका यूज करके हम निकालेंगे लेंथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। सो आई रिटर्न 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर दिया हुआ है 130, सो पुट इट ओवर हियर, प्लस इक्वल टू 2 एज इट इज, एल एज इट इज, एंड बी की वैल्यू जो है वो 30 है, सो विल राइट 30 इन प्लेस ऑफ बी, क्योंकि हमें एल फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 130 अपॉन 2। इस साइड पर क्या बचा, अब सिर्फ l प्लस 30 बचा, इसको डिवाइड कर दिया तो मिला 65। अब 30 जो है वो लेफ्ट साइड आएगा, तो प्लस में से माइनस हो गया, 65 माइनस 30 35, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ हमें मिल गई है 35 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, एरिया। तो अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ जो है वो 35 हमें मिली और ब्रेथ जो है वो ऑलरेडी दे रखी है, सो 35 इंटू 30 विल बी 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये यूनिट सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर कंपल्सरी लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर जो है वो एक रेक्टेंगल के शेप में रखा है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22। इसकी लेंथ क्या है 40 एंड ब्रेथ क्या है 22। आई रिटर्न 20, लेट आई करेक्ट, यहाँ पर 22 है इसकी ब्रेथ। ओके, नाउ नेक्स्ट, if the same wire is rebent in the shape of square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. क्या किया है, देखो ये वायर से हमने पहले स्क्वायर बनाया, लेंथ 40 है, ब्रेथ 22। अब इसी वायर को हमें, अगर हम उसके स्क्वायर में फोल्ड करते, मतलब रीबेंट करते, पहले रेक्टेंगल बनाया, अब उसी को लेकर हम अगर स्क्वायर बनाए, तो उस स्क्वायर की जो साइड्स हमें मिलेगी उसकी लेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पर जितना वायर हमने रेक्टेंगल बनाने के लिए यूज किया है, उतना ही वायर से हमें ये स्क्वायर भी बनाना है। मतलब कि वायर की लेंथ तो बदलने वाली नहीं है, और वायर की जो लेंथ है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का पेरीमीटर कैसा होना चाहिए, इक्वल। दैट्स वाई आई रिटर्न पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब दोनों का फॉर्मूलाज रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू एल प्लस बी एंड फॉर स्क्वायर 4 इंटू एल। क्लियर। अब देखो दोनों के लिए मुझे अलग अलग यूज करने पड़ेंगे। ये रेक्टेंगल के लिए ना मैं कैपिटल वाला ले लेती हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए। इसकी जो लेंथ है ना वो कैपिटल एल है और इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल बी है, और इसके लिए मैंने स्मॉल लेटर्स यूज किया है। ठीक है। अब देखो वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल एल की वैल्यू है 40 प्लस ब्रेथ क्या है 22 और यहाँ पर 4 इंटू एल तो हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो 40 प्लस 22 इसका एडिशन कर दो, क्या होगा 62 होगा। और इस तरफ क्या है 4l, तो यहाँ से 4 को मैं ना डिनोमिनेटर में लाती हूँ। ठीक है। अब कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4 और इसको वापस से 2 3 ज़ा एंड 1 ज़ा 31 2 ज़ा 62। तो हमें लेंथ मिल गई। देखो क्या मिली लेंथ हमें 31 यूनिट इज सेंटीमीटर। यस, सो 31 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर। जो भी स्क्वायर है उसकी लेंथ 31 मिली। अब हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया। कौन सा जो शेप है वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, रेक्टेंगल वाला कि स्क्वायर वाला। तो उसके लिए दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट वी फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू लेंथ, उसकी लेंथ है 40 तो 40 इंटू 40 विल बिकम, सॉरी दैट इज माई मिस्टेक, फॉर रेक्टेंगल एल इंटू बी होगा। देखो मैं ना बहुत जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ इसलिए मिस्टेक्स हो रही है। एल इंटू बी रेक्टेंगल के लिए तो 40 इंटू बी की वैल्यू होगी 22, क्योंकि देखो बी 22 दिया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 880 हो जाएगा। ठीक है। 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 एंड 0 एज इट इज। तो ये हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया। अब स्क्वायर का एरिया एल इंटू एल से निकलेगा 31 इंटू 31। कहाँ से आया 31, हमने अभी अभी फाइंड किया है। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 961 मिला। अब देख लो कौन सा एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर वाला कि रेक्टेंगल वाला। ठीक है। और इस हिसाब से हम आंसर लिखेंगे कि जो स्क्वायर है उसका एरिया ज़्यादा है। तो आंसर लाइन कैसे लिखोगे, विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, स्क्वायर शेप एनक्लोजेज मोर एरिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अभी जो हमने प्रीवियस वाला सम किया ना उसी तरह का है, लेकिन वहां पेरीमीटर इक्वल थी, यहाँ क्या दे रखा है, एरिया इक्वल है, ऐसा बोला है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, देखो स्क्वायर पार्क की साइड 60 है, सो आई रिटर्न 60 एवरीवेयर। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 90 है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, हमें सिर्फ इसकी ब्रेथ निकालनी है। ओके। दोनों का एरिया इक्वल है, सो आई रिटर्न एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 60 इंटू 60 और यहाँ पर 90 इंटू बी, क्योंकि बी हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर मैंने कैपिटल एल भी लिया है, यहाँ पर स्मॉल, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। अब ये 90 है वो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, 0 0 कैंसल। अब हम इसे कैंसल करते हैं, चलो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पर 3 2 ज़ा, सो 2 इंटू 2 4, बी विल बी 4 मीटर। तो हमें ब्रेथ मिल गई, ये जो पार्क है उसकी ब्रेथ क्या है 4 मीटर। ओके। अभी लास्ट सम बाकी है, एक ही बाकी है 8। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक वॉल है जो नीचे मैंने ड्रॉ की हुई है, उसमें एक डोर फिट करके रखा है। द लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6। जो वॉल है उसकी लेंथ 4.5 एंड जो ब्रेथ है वो 3.6 मीटर है। Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is 20 per meter square। और क्या दे रखा है, हाँ डोर का भी हमें लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है 2 मीटर एंड 1 मीटर। तो देखो दो डोर के बारे में लिख लो, फिर वॉल की भी डेटा लिख लो और कॉस्ट भी लिख लो। अब हमें वाइट वॉश करना है तो ये बट ऑब्वियस है कि जितने पोर्शन में डोर है वहाँ तो वाइट वॉश नहीं होगा,
तो पूरा एरिया निकाल लो वॉल का, उसमें से डोर का माइनस कर दो, क्योंकि डोर के ऊपर व्हाइट वॉश नहीं होता। तो देखो एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर निकाला, ठीक है। ये खुद से ट्राई करो आप, मैं फोटो भेज रही हूँ, ओके। तो ये आंसर मिल रहा है। अब इसके हिसाब से ना कॉस्ट भी फाइंड करने की कोशिश करना, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 20 है तो इतने की कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट और आपका सिलेबस भी कंप्लीट, इससे आगे नहीं आएगा। सो राइट डाउन अप टू फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।